Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter Class 12 Biology, Human Health and Diseases. And in this chapter we are now going to study about tobacco abuse. So, tobacco abuse. It has been used by humans for more than 400 years. Humans इसको 400 years से भी ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं. इसको स्मोक करा जाता है, च्यू करा जाता है और यूज़ करा जाता है एज अ स्नफ. इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग अल्कोलॉइड जिसको हम निकोटिन कहते हैं विच इज़ एडिक्टिव ऑल्सो. ये निकोटिन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को ताकि वो रिलीज कर सके एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन के साथ साथ नॉर एड्रिनलिन भी रिलीज कर सके ब्लड स्ट्रीम में ताकि वो दोनों हार्ट बीट इंक्रीज कर सके और बीपी इंक्रीज कर सके, जिसकी वजह से एक सेंसरी ऑफ टेम्परेरी प्लेजर फील होगा. बट ऑब्वियसली दैट विल गोइंग टू हार्म लॉट्स इन लॉन्ग टर्म. So, smoking is associated with increased incidence of cancer of blood, urinary bladder and throat as well. Smoking associated होते हैं with increased incidence of diseases like cancer of blood, urinary bladder, throat, as well as diseases like bronchitis, coronary heart disease, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा. स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ब्लड में इंक्रीज करता है और इनबाउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होने लगती है और हार्ट डिजीजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. इसकी वजह से बॉडी में O2 की डेफिशिएंसी कॉज होती है. एंड च्यूइंग ऑफ टोबैको इज एसोसिएटेड with increased incidence of cancer of oral cavity. और chewing of tobacco associated होता है with increased incidence of oral cavity of cancer. Like we have heard about throat cancers and we have seen warnings on packets of tobacco also about cancers of throat. If you have noticed guys, it is clearly mentioned on the packets of tobacco. Here is one important note that chronic use of alcohol damages nervous system and causes liver cirrhosis. अल्कोहल की क्रोनिक यूज से यानी कि इंक्रीज यूज से नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और वो कॉज करते हैं लिवर सरोसिस यानी कि लिवर प्रॉब्लम्स. एथलीट्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स, ड्यूरेटिक्स और एरिथ्रोपोइटिन जैसे हार्मोन्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके और अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस बेटर बना पाए. और लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा. लाइक इन फीमेल्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर इंक्रीज एग्रेसिवनेस, mood swings, depression, masculinization, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth, enlargement of clitoris, and deepening of voice. And in males also there are side effects of anabolic steroids. Let's see about them also. In males, anabolic steroids causes acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction on size of testicles, in decreased sperm production, potential damage to kidneys and liver, breast enlargement, premature baldness and enlargement of prostate glands. Although it is totally banned that an athlete can't use anabolic steroids, but illegally many of them still uses and have lots of side effects in their lifespan. Here, what is meant by the term health? हम सबको ये पता है कि हेल्थ होती है, लेकिन हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है?
How can we determine that a person is completely healthy? We can say a person is completely healthy when he is completely physically, mentally, and socially fit. And here it also defines that health can be defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of any disease and physical fitness. क्योंकि हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ होता ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. लेकिन अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है तो उसको हम एज अ हेल्दी पर्सन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एक पर्सन को हम तभी कहेंगे डिजीज़ है जब उसके एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स या सिस्टम्स जो है बॉडी के वो एडवर्सली अफेक्ट हो और उनको हम कैरेक्टराइज करें बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स. डॉक्टर्स भी डिजीजेस साइंस और सिम्टम्स के बेस पे डिपिक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देते हैं. कॉन्जेनाइटल डिजीजेस प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम से ही. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एक्सेट्रा. But acquired diseases occur after birth. It is acquired from the environment. But it can be classified further into two types: infectious and non-infectious. Infectious or communicable diseases can be transmitted from one person to another via contact vectors, blood, water, food, fomites, handkerchief, pens, doorknobs, etc. And common examples of these types of diseases are most commonly common cold. Typhoid, cholera, AIDS are example of infectious diseases. Because all of these but typhoid and cholera are mainly caused due to contaminated food and water. And AIDS is caused due to many reasons which we have studied earlier. Non-infectious or non-communicable diseases cannot be transmitted from one person to another. इस non-communicable और non-infectious diseases को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन. For example, hypertension, allergies, etc. And among all infectious diseases, cancer is the major cause of death. As we have studied earlier also in detail about cancer, that how cancer causes death and invades in our body. Infectious diseases contagious भी हो सकते हैं, नॉन contagious भी हो सकते हैं. कॉन्टेजियस डिजीजेज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर जाते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. लाइक द मोस्ट recent and the most common example now times is corona, and others also chicken pox, conjunctivitis actually is a eye infection. And non-contagious diseases do not spread by direct contact, for example dengue, fever, malaria, typhoid, etc. Then comes the topic of bacterial diseases in humans. इस टॉपिक में से डेफिनेटली गाइस एक ना एक डिजीज पे क्वेश्चन आता ही आता है, 3 मार्कर आएगा ही आएगा डेफिनेटली. वो किसी पर भी आ सकता है. टाइफाइड, निमोनिया, कॉलेरा, डेंगू इज अ वायरल डिजीज ऑल्दो, बट टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया किसी पर भी एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से अराइज होता ही होता है. फर्स्ट, टाइफाइड. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. और वन मोर थिंग, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस 3 मार्कर में पूछे जाते हैं क्योंकि वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, वो मैं आपको अभी टाइफाइड के टॉपिक के एंड में बताता हूँ. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी.
पैथोजेन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और दूसरे ऑर्गन्स तक माइग्रेट करता है थ्रू ब्लड। इसके सिम्टम्स होते हैं सस्टेन्ड हाई फीवर फॉर वीकनेस, stomach pain, constipation, headache are some of the most common symptoms of typhoid. Intestinal perforation and death can occur in severe cases. Intestinal perforation means collapse of our intestine and हमारा स्टमक वर्क करना ढंग से प्रॉपरली बंद कर देता है उसमें। दैट कैन लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। टाइफाइड कैन बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। मैरी मिलिन निक नेम टाइफाइड, उन्होंने मैरी करा था एक कुक को टाइफाइड कैरियर जो कि स्प्रेड करता था डिजीजेस फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड। ऑल्दो ये लास्ट पॉइंट कोई यूज़ का है नहीं, बट फॉर जनरल रेफरेंस आई हैव टोल्ड यू। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से 3 मार्कर बन सकते हैं। इसमें से जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विच बैक्टीरिया और causes typhoid, how does it enter our body and what are its symptoms or by which test it can be confirmed। इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा एग्जाम में फॉर श्योर। देन सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंस। गाइस ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया जो कॉज कर रहे हैं, ये कॉजेटिव बैक्टीरिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंस। इस डिजीज में एल्वियोलाई फिल्ड हो जाता है with fluid leading to severe problems in respiration and symptoms क्या है निमोनिया के? फीवर, कफ, हेडेक, चिल्स एक्सेट्रा। चिल्स मतलब जब बॉडी शिवर होती है, दैट्स चिल्स। लिप्स एंड फिंगर नेल्स वो ग्रेइश टर्न हो जाते हैं, ग्रेइश से ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। और एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्शन को एक्वायर करता है बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। और इसी तरीके से जस्ट लाइक थ्रू द सेम मेथड कॉमन कोल्ड भी एक्वायर करा जाता है। थर्ड इज कॉलेरा। Cholera is caused by Vibrio cholerae. The infection occurs through contaminated food and water. भाई मैंने बताया था ना contaminated food and water से होता है cholera और typhoid। The patient has diarrhea and repeated vomiting as symptoms. Due to excessive fluid loss from body, the patient is recommended ORS। जब हमने काफ़ी बार घर में भी हमारे घरों में सुना हुआ है कि जब भी बॉडी में जब डिजीज़ में कुछ भी कोई पेशेंट से कुछ भी खाया नहीं जाता तो उसको ORS रिकमेंड करा जाता है ताकि उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड लॉस को रिकवर करा जा सके। फॉर जनरल रेफरेंस ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। देन फोर्थ डिजीज इज डायफीरिया। Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae। जो डिजीज़ है वो जनरली अफेक्ट करता है उन चिल्ड्रंस को जो कि 5 इयर्स तक की एज के अंडर होते हैं। जो पेशेंट्स हैं उनमें एज अ सिम्टम उनके ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन स्प्रेड हो जाती है ओवर द थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, जिसकी वजह से हॉर्सनेस होती है, मतलब बात करने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है बार बार और ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है। फिफ्थ ट्यूबरक्यूलोसिस और कोच डिसीज भी कहते हैं इसको। ये कॉज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम।
इसमें BCG वैक्सीन दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट दिस डिजीज. देन DOTS program is treatment for TB. Full form of DOTS program is Direct Observed Therapy Short Term Program. And Mantox test is used for diagnosis of TB. Then next is leprosy. Leprosy is commonly called हानसेन्स डिजीज. ये भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से कॉज होता है और इसके सिम्टम्स होते हैं लाइट कलर्ड पैचेज ऑन स्किन, थिकनिंग ऑफ नर्व्स, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी. सेवेंथ है टेटनस और लॉक जॉ. टेटनस कॉज होता है बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी. ये प्रोड्यूस करता है एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन जिसको हम टेटनोस्पैज्मिन कहते हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है और इसका स्पैज्म सबसे अर्लीस्ट साइन होता है. ऑल्दो टेटनस की इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ लगाए भी जाते हैं टू द न्यूबॉर्न. एंड here this topic ends. And guys, I am again telling this thing, it is very important topic और एक 3 मार्कर इसमें से डेफिनेटली आता ही आता है. And on this note we conclude our today's videos. And if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel and click the bell icon for further updates. And link for the notes will be given in description box. Thank you for watching this.